بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کے پاس صلاحیت ہے، آپ کا دل اللہ کے لیے دھڑکتا ہے اور آپ دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ بھی رکھتے ہیں، پھر بھی آپ کو پیسوں کی تنگی کیوں جھیلنی پڑتی ہے؟ کیوں اللہ کے چنے ہوئے بندے اکثر دیکھے جاتے ہیں کہ ان کی جیب خالی رہتی ہے، جبکہ کچھ لوگ آسانی سے ترقی کرتے جا رہے ہیں؟ کیا یہ کسی سزا کی علامت ہے یا اس کے پیچھے اللہ کی کوئی گہری حکمت چھپی ہوئی ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی راز پر بات کریں گے۔ کیوں کئی بار اللہ کے چنے ہوئے لوگ آرتھک فائنینشیل مشکلات کا سامنا کرتے ہیں، اور یقین مانیے اس حقیقت کو سمجھ لینے کے بعد آپ کا نظریہ ہی نہیں بلکہ آپ کی پوری زندگی کا راستہ بدل سکتا ہے۔ آخر تک میرے ساتھ رہیے گا، کیونکہ جو بات آپ سننے جا رہے ہیں وہ آپ کے دل اور دماغ کو ایک نیا روشن راستہ دکھانے والی ہے۔ اور یاد رہ، آج ہم آخر میں اللہ تعالیٰ سے ایک خاص دعا بھی کریں گے، تو دل کھول کر رحمت کے لیے تیار ہو جائیے۔ اب آئیے سیدھے اس سچ پر آتے ہیں جو آپ کے فائنینس کی پریشانیوں کو بالکل نئے انداز سے سمجھنے میں آپ کی مدد کرے گا۔ اسے غور سے سنیے، کیونکہ آخر میں ہم ایک طاقتور دعا بھی کریں گے۔ اگر یہ بات آپ کے دل کو چھو جائے تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، شاید آج ہی وہ دن ہے جب آپ کے لیے کوئی نئی راہ کھل جائے۔ نمبر 1، آرتھک کمی اللہ کی غیر موجودگی کا نشان نہیں۔ اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ اگر جیب خالی ہے تو کیا اللہ ہم سے ناراض ہے؟ لیکن سچائی یہ ہے کہ فائنینشیل تنگی ہمیشہ اس بات کا ثبوت نہیں کہ اللہ آپ سے دور ہے۔ کئی دفعہ یہ اللہ کی طرف سے بس ایک ذریعہ ہوتا ہے تاکہ وہ آپ کے کردار کو تراش سکے۔ سمجھنا آسان نہیں ہے۔ دلوں کا بوجھ، موقعوں کی کمی اور دنیا سے کٹا کٹا محسوس ہونا واقعی بھاری ہوتا ہے، مگر یاد رکھیے اللہ اس کمی کو آپ کو تباہ کرنے کے لیے استعمال نہیں کرتا، بلکہ آپ کی قسمت، پرسنالٹی کو مضبوط کرنے کے لیے کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ بروکن ہونا اللہ کی اس بڑی حکمت کا حصہ ہو جس کے تحت وہ آپ کو تیار کر رہا ہے آپ کی اصل منزل کے لیے، جس کا علم صرف اسی کو ہے۔ نمبر 2، اللہ چاہتا ہے آپ اسی پر نربھر رہے، نہ کہ مال اور دولت پر۔ دنیا سکھاتی ہے کہ مال اور دولت ہی سب کچھ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اصل روزی دینے والا تو صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ کئی دفعہ چوجن ونس کو یہ بات آزمانے کے لیے فائنینشیل تنگی سے گزرنا پڑتا ہے تاکہ انہیں احساس ہو کہ دولت سے زیادہ یقین کے قابل تو اللہ ہی ہے۔ قرآن پاک میں سورہ الطلق نم 65 2-3 اللہ فرماتا ہے، جو بھی اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے کوئی راستہ نکال دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس سے ہمیں سیکھ ملتی ہے کہ ہم سورس یعنی اللہ کو بھول کر جری یعنی پیسے پر نربھر نہ ہو جائے۔ دولت ایک نقلی آسرا ہو سکتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ آپ بھلے ہی ابھی جیب میں کم پیسے لیے گھوم رہے ہو، مگر اللہ آپ کو اس دور سے گزار کر آپ کا ایمان مضبوط کر رہا ہے۔ یہ تنگی آپ کی دعا کو گہرا کرتی ہے، آپ کے دل کو جھکاتی ہے تاکہ آپ جان لے کہ سچی قوت اللہ ہی دیتا۔ نمبر 3، اللہ آپ کے دل کی نیت کو آزما رہا ہے۔ پیسہ اکثر ہمارے کردار کو بے نقاب کر دیتا ہے۔ جب سب کچھ صحیح چل رہا ہو تب تو الحمدللہ کہنا آسان ہے، مگر جب تنگی آتی ہے تب اصلی امتحان ہوتا ہے۔ کیا ہم اس وقت بھی اللہ کو راضی رکھنے کی کوشش کریں گے یا پیسے کا غلام بن جائیں گے؟ قرآن ہمیں بار بار سمجھاتا ہے کہ دنیا کی چیزیں ٹیمپریری ہے۔ سورہ الکہف 18-40 میں ذکر ہے، مال اور دولت اور اولاد دنیا کی زندگی کی زینت ہے، مگر باقی رہنے والی نیکی کے کام تمہارے رب کے نظر میں ثواب میں بھی اچھے ہیں۔ اور امید میں بھی اللہ کبھی کبھی ہمیں فائنینشیل سٹرگل دیتا ہے تاکہ دیکھے کہ ہماری نیت میں کتنا خلوص، سنسیریٹی ہے۔ جب کل دولت آئے گی تو کیا ہم اسے اپنے طرز سے اڑائیں گے یا اس کا استعمال نیکیوں کے لیے، لوگوں کی بھلائی کے لیے کریں گے؟ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہمارے دل دنیا کے محبت سے بھر گئے ہیں
या अभी भी उसमें अल्लाह की याद बाकी है? नंबर 4, शायद आप अभी भी इतनी दौलत संभालने के काबिल नहीं है। अल्लाह ताला को इल्म है कि इंसान कब क्या संभाल सकता है। बहुत मुमकिन है कि अगर आपको आज ही बहुत पैसा मिल जाए तो आपकी रूह अभी इतनी मजबूत ना हो कि उसके फनों से बच सके। देखिए, कुरान में कौमों के किस्से हैं जो दौलत पाकर गुरूर में आ गए और आखिरकार नाश को पहुंच गए। अल्लाह कभी कभी देर लगाता है, मगर इसका मतलब यह नहीं कि इनकार कर रहा है। यह एक डिवाइन प्रिपरेशन है। अभी इस तंगी से गुजरते हुए आप अखलाक, जिम्मेदारी और हिकमत सीख रहे हैं, ताकि कल जब अल्लाह आपकी रिज़्क़ के दरवाजे खोले तो आप उसे गलत तरीके से बर्बाद ना करें, बल्कि नेक कामों और असल बेहतरी के लिए इस्तेमाल करें। नंबर 5, रूहानी जंग और शैतानी रुकावटें। याद रखिए, कभी कभार आप ब्रोकन इसलिए होते हैं क्योंकि आप रूहानी जंग में हैं। शैतान जानता है कि अगर आपको पैसा मिल गया तो आप न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपनी नस्लों और आसपास के लोगों के लिए बेहतरी लाएंगे। आप सदका जकात देकर उन गरीबों की मदद करेंगे जो मजबूर है। शैतान यही नहीं चाहता, इसलिए वह आपके रास्ते में तरह तरह के रुकावट डालता है। मगर घबराइए मत, अल्लाह फरमाता है, सूरह अल हश्र 58:10 में दुआ का जिक्र है, ए रब, हमें और हमारे उन भाइयों को माफ कर जो ईमान लाने में हमसे पहले रह। यानी अल्लाह अपने बंदों को चाहे हजारों इम्तिहान से गुजारे, मगर अगर हम मजबूत रह तो फतह हमारी होगी। यह तंगी आपकी शिकस्त का निशाना नहीं, बल्कि इस बात का सबूत है कि आप अल्लाह के एक और जान लो कि तुम्हारे माल और औलाद एक आजमाइश है। बहुत से लोग दौलत पाकर गुरूर में आ जाते हैं, फिर उन्हें महसूस होता है कि अब अल्लाह की जरूरत नहीं। यह सबसे बड़ा फरेब है। अल्लाह रहम करने वाला है। कभी कभी वह रोक रखता है ताकि आप उस गरूर के कुएं में ना गिर जाए। दौलत एक बहुत बड़ी अमानत भी है जिसे संभालना आसान नहीं। अगर दिल मजबूत नहीं तो पैसा इंसान को रास्ते से हटा देता है। इसलिए अल्लाह अपनी रहमत से कभी कभी दौलत की आमद को रोक देता है, ताकि हम रूहानी तौर पर इतने ताकतवर बन जाएं कि जब पैसा आए तो हम उसे सही रास्ते में लगाएं, ना कि उससे अपनी अखलाक और ईमान को नुकसान पहुंचाएं। नंबर 6, अल्लाह आपका रुख अपनी तरफ मोड़ रहा है। कभी कभी फाइनेंशियल तंगी अल्लाह का तरीका होता है, हमें याद दिलाने का कि दुनियावी चीजें आखिरकार फना है। सूरह अल अंकाबूत 29:64 में फरमाया गया है, यह दुनिया की जिंदगी तो बस खेल और तमाशा है, असल जिंदगी तो आखिरत की है। हो सकता है आपकी दौलत इसलिए रोकी जा रही हो ताकि आपको महसूस हो कि आपकी असली मंजिल अल्लाह की रजा है, ना कि दुनिया की दागो नूर। जब आप माल और दौलत के पीछे भागते हैं तो कई दफा अल्लाह की याद से दूर होते चले जाते हैं, मगर जब दौलत रुक जाती है तो हम रुककर सोचते हैं, ऐ मेरे रब, तू मुझसे क्या चाहता है। यही वह लम्हा है जब अल्लाह आपका ध्यान अपनी तरफ फेरता है, आपको अपनी बुलावा या मकसद याद दिलाता है जो शायद नेक आमल या लोगों की खिदमत से जुड़ा हो। जब आपकी जिंदगी का रुख अल्लाह की तरफ होता है तो वह दरवाजे खोलता है जहां से आप उम्मीद भी नहीं करते। इसी को हम डिवाइन डायरेक्शन कहते हैं। अल्लाह आपको दुनिया से हटाकर अपनी रहमत और बढ़ाई की तरफ लाना चाहता है। नंबर 7, दूसरों के लिए हमदर्दी पैदा करना। फाइनेंशियल परेशानी अक्सर हमारे अंदर हमदर्दी का जज्बा पैदा करती है। सूरह अल इंसान 77 में नेक बंदों की मिसाल है जो गरीब और यतीम को खिलाते हैं, यह कहते हुए कि हम तुम्हें सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए खिलाते हैं, ना तुमसे किसी बदले की उम्मीद रखते हैं, ना शुक्रिया की। जब आप खुद तंगी में होते हैं तब आपको पता चलता है कि बिना पैसों के रहना कितना मुश्किल है। फिर जब अल्लाह आपको रिज़्क़ देता है, आप दूसरों के लिए अपना दिल खोलकर देने को तैयार रहते हैं। यह तंगी आपको रहम दिल और सच्ची मोहब्बत को बढ़ाती है। इसीलिए इसे अल्लाह का एक प्रोसेस समझिए। आज आपकी जेब खाली है, मगर कल यह तजुर्बा आपको उन लोगों की तरफ ले जाएगा जो अब भी परेशान है।
नंबर 8, नस्ली बंदिशों को तोड़ना। कुछ खानदान में पीढ़ियों से गरीबी, कर्ज और गलत माली फाइनेंशियल फैसलों की आदत चली आ रही होती है। अल्लाह ने शायद आपको उस सिलसिले को खत्म करने के लिए चुना हो। कुरान सूरह ar-Ra'd 13:1 बताता है, अल्लाह किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वह खुद को ना बदले। इसका मतलब है आपको इस तंगी से गुजर कर सीख हासिल करनी है ताकि आगे आने वाली नस्लें इन गलतियों को ना दोहराए। यह परेशानियां सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि आपकी औलाद, आपके खानदान के तमाम लोगों के लिए सबक हो सकती है। अल्लाह ने आपको एक चेन ब्रेकर बनाया है ताकि आप वह नींव रख दे जिससे आने वाली पीढ़ियां फायदा उठाएगी। नंबर 9, आजमाइश से निखरा ईमान। सूरह अल-बकरा 2:286 में बताया गया है कि अल्लाह किसी जान पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। पैसों की कमी वाकई मुश्किल है, मगर इसी से हमारा ईमान और मजबूत होता है। जब दुनिया से सारे सहारे छिन नजर आते हैं तब हमें समझ आता है कि असल सहारा अल्लाह ही है। इसी आग में हमारा ईमान मजबूत होता है, हमारा तवक्कुल बढ़ता है। जब आप इस इम्तिहान से बाहर निकलते हैं आपका ईमान एक चमकदार हीरे की तरह हो जाता है और फिर दुनिया देखती है कि अल्लाह ने कैसे आपको संभाला। नंबर 10, अल्लाह की टाइमिंग का इंतजार। अल्लाह कभी जल्दी नहीं करता, ना ही देर। सूरह अल-हज 22:47 में इशारा मिलता है कि अल्लाह के यहाँ का एक दिन तुम्हारी गिनती के 1000 सालों के बराबर हो सकता है। मतलब अल्लाह के फैसले हमारी जल्दबाजी से कतई मुतासिर नहीं होते। हो सकता है हम सोचें अब तक मेरे पास पैसा आ जाना चाहिए था, मगर अल्लाह कहता है सब्र करो। सूर अल-इमरान 300 में सब्र की ताकीद की गई है। इसमें यकीन रखिए कि जिस वक्त अल्लाह आपके लिए दरवाजे खोलेगा आपकी मेहनत का फल अचानक से आपके सामने होगा। हो सकता है आज आप तंगी के दरवाजे में हो, मगर कल अल्लाह आपको ऐसी राह दिखाएगा जहां बरकत ही बरकत होगी। बस उसकी टाइमिंग पर यकीन रखिए। नंबर 11, नजर पर नहीं ईमान पर चलना। सूरह अल-बकरा 23 में मोमिनों की खूबी यह बताई गई है कि वह गैब अनसीन पर ईमान रखते हैं। दुनिया चीजों को देखकर फैसला करती है, मगर अल्लाह के बंदे अक्सर वह देखते हैं जो आम आंखों से नजर नहीं आता। यानी अल्लाह की मदद, फाइनेंशियल कमी आपके तमाम नकली सहार को तोड़ देती है। जब सब कुछ साथ छोड़ने लगता है तब सिर्फ अल्लाह का सहारा बाकी रह जाता है। और यही वह पल है जब आपका ईमान असल मायने में जागता है, जब हाथ में कुछ ना मगर दिल में यकीन हो कि अल्लाह मेरे साथ है। तो यही तो असली ईमान की पहचान है। नंबर 12, पहले मिली बरकतों का गलत इस्तेमाल। सच मानिए कुछ लोग इसलिए तंगी में हैं क्योंकि उन्हें जो पहले अल्लाह ने रिज़्क दिया था उसका सही इस्तेमाल नहीं किए। हो सकता है बेतहाशा खर्च किया, जकात सदका में कमी की, या अपने आसपास जरूरतमंद की फिक्र नहीं की। सूरह अत-तौबा 9:34 में कुछ लोगों पर इल्जाम लगाया गया है जो माल जमा करके रखते हैं मगर अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, तो वह उनके लिए अजाब, पनिशमेंट का सबब बन सकता है। यह हमें सबक देता है कि अल्लाह जब आपको देता है तो आपसे उम्मीद करता है कि आप नेकियां बढ़ाए, दूसरों की मदद करे। अगर हमने गलतियां की तो अल्लाह हमें रोक सकता है ताकि हम सबक सीखें और दोबारा वही गलती ना दोहराएं। नंबर 13, दौलत में नहीं बल्कि अल्लाह की रजा में कनात, सेटिस्फैक्शन सीखना। सूरह अल-राद 13:28 में अल्लाह फरमा रहे हैं, याद रखे दिलों का सुकून तो अल्लाह के याद में है। असल कनात माल व दौलत से नहीं आती बल्कि अल्लाह से जुड़ाव से आती है। जब आप तंगी में होते हैं तब आपको महसूस होता है पैसा खुशी का जरिया नहीं हो सकता, सच्ची खुशी तो अल्लाह से करीबी में है। यह सीख बेशकीमती है क्योंकि जब कल आपको दौलत मिलेगी तब भी आपका दिल अल्लाह से जुड़ा रहेगा, ना कि दुनिया की चमक धमक से। यही वह फर्क है जो चूजन वंश को दूसरे लोगों से अलग करता है। उनका दिल दौलत के आने जाने पर डगमगाता नहीं क्योंकि उनकी असल रूहानी खुशी अल्लाह की रजा में है। नंबर 14,
आपका मकसद कुछ अरसे के लिए कम पैसों की मांग करता है। आखिर में कुछ लोग इसलिए ब्रोकन होते हैं क्योंकि अल्लाह ने उन्हें ऐसा मकसद दिया है जहां पहली नजर में पैसे की आमद कम होती है। मुमकिन है आपको किसी खिदमत खल्क या किसी नेक काम के लिए बुलाया गया हो जो फौरन माली फायदा नहीं देता। सूरह अल-नास 16:797 में अल्लाह फरमाता है, जो नेकी करेगा चाहे मर्द हो या औरत और मोमिन हो, उसे हम पाक जिंदगी देंगे। यानी आपके नेक कामों को अल्लाह जाया नहीं जाने देता, चाहे दुनियावी माल कितनी देर से आए। हो सकता है अभी आप कमाई के बगैर उस नेक रास्ते पर चल रहे हैं, मगर अल्लाह आपका इम्तिहान ले रहा है कि क्या आप सिर्फ रिज़्क़ के लिए यह सब कर रहे हैं या उसकी खुशी के लिए। यह तंगी आपके नियत की आजमाइश कर रही है। क्या आप अपने मकसद पर डटे रहेंगे भले ही आपकी जेब भरी ना हो, या आप दुनिया की तरफ वापस भागेंगे। अल्लाह चाहता है कि पहले आप साबित करें कि दिल उसका है, फिर वह आपके बाहरी हालत भी बदल देगा। नतीजा दोस्तों, आपको यह समझना होगा कि आप वाकई ब्रोकन हैं। आप रूहानी तौर पर तराशे जा रहे हैं। अल्लाह आपको अपने वक्त से जोड़ना चाहता है, आपको तवक्कुल से जीना सिखा रहा है, आपको दौलत का सही इस्तेमाल और ईमानदारी सिखा रहा है, और आपकी नीयत को पुख्ता कर रहा है। सूर अल-बकारा 2:216 में अल्लाह कहता है, हो सकता है कि किसी चीज को तुम बुरा समझो मगर वह तुम्हारे लिए भलाई हो। यकीन रखिए यह सब एक तैयारी है उस बड़े काम के लिए जिसके लिए अल्लाह ने आपको चुना है। जब वह वक्त आएगा तो आपको आर्थिक बरकत सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अल्लाह की राह में इस्तेमाल करने के लिए मिलेगी। दुनिया देखेगी कि जिस इंसान को वह ब्रो के समझ रही थी, दरअसल अल्लाह ने उसे एक खास मकसद के लिए संजो कर रखा था। अब आइए हम सब मिलकर एक दुआ करें। या अल्लाह, तेरे आगे हम सर झुकाते हैं, पूरा यकीन रखते हुए कि तेरी रजा सबसे बेहतर है। चाहे हम आज फाइनेंशियल तंगी में, हमें यकीन है कि तू हर मुश्किल का इस्तेमाल हमें मजबूत करने और तेरे करीब लाने के लिए करता है। या रब, हमें सिखा कि हम तुझ पर यकीन रखें, ना कि दुनिया के माल और दौलत पर। जब तू हमें आगे चलकर बरकत दे तो हमें इतनी हिकमत और रहमत दे कि हम उस दौलत को तेरी राह में, दूसरों की भलाई में और नेक कामों में खर्च कर सके। हमारे दिलों को मजबूत कर, रूह को पाक रख और हमारे कदम तवक्कुल की राह पर चला ताकि हम सिर्फ तेरी रजा के मुताबिक जी सके। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्रिया है कि तूने हमें एक खास मकसद के लिए चुना है। यह सब हम तुझसे इल्तिजा करते हैं। आमीन। शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। अगली बार तक के लिए अल्लाह हाफिज। और जाते जाते एक सवाल, आपके ख्याल में चूजन वंश को सबसे ज्यादा आर्थिक परेशानियां किस वजह से झेलनी पड़ती है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए।